Good morning, students. As we have already covered many areas of end of bipolarity chapter 2, that day we have discussed about how the USSR came into being and about the Soviet system. And in the Soviet system also we have discussed about some positive features and then some negative features also. Now I'm going to the another area of this chapter, that is causes of disintegration of Soviet Union. As this chapter deals with end of bipolarity, means one superpower collapsed, means USSR collapsed. Now how did USSR collapsed, as the strongest superpower came into being after 1945, and how suddenly after 1991 it collapsed? So there are many causes. Let's start. Number one, Soviet political system was authoritarian. As we have already discussed in the negative features, that Soviet political system, though it came up with a strong system, but it was authoritarian, it was despotic, it was aristocratic. They were highly powerful and dignified people. They were not looking to the people, common people. They were not looking to the for the cause of the common people. Number two, people were not satisfied with the system, because people came to know that they were authoritarian, and at that time common people were not given any beneficiary benefits which they have thought that they will get. Number three, government failed to fulfill economic aims of the people. As we have seen in the positive features, that there was no unemployment. So that thing didn't came up. There was employment, but that is for the rich people and for the higher middle class people, but not for the common poor people. So there was no many people were suffering from unemployment problem at that time. There was not so many schemes that was thought of but not fulfilled at that time. Number four, Soviet administrative system suffered from corruption. It was highly corrupted because people, that officials were all highly superpowered. They have so much power in their hand. They were highly they have much revenue in their hand, which they were going through with the system, and they were making it for their own beneficiary needs. So they were highly corrupted. Government officials had more privileges than ordinary citizens. They were highly respected in that whole USSR, and common people were not given any importance. Number six, Communist Party ruled the country for 70 years. So I have told already that right from 1917, USSR was ruled by Communist Party, and that Communist Party controlled the whole of the system of Soviet Union. But the Communist Party, the way it came up, but it didn't materialize in that way. It was not accountable to the people. ये इतना अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था. वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा था, but not for the common people. It was highly despotic in nature. मतलब बहुत powerful था, power drunken था ये पूरा, और वो अपने आप में थे और not for the common people. Number seven, ordinary citizens became aware of economic advance of the West. They could see the wide gap between their system and the system of the West. बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू किया कि एडवांस में जो कैपिटलिज्म पॉलिसी जो था वो बहुत स्ट्रांगली चल रहा था, पावरफुल चल रहा था, बहुत बेनिफिट भी दे रहा था वो सब लोगों को. बट जो उनके सिस्टम था, जो कम्युनिस्ट सिस्टम, जो सोशलिज्म पॉलिसी जो था, वो काम नहीं कर रहा था. यहाँ पे गवर्नमेंट हैज़ टेकन सिस्टम कंट्रोल ऑफ ऑल द थिंग्स, लेकिन वो बेनिफिट गवर्नमेंट सबको नहीं दे रहा था. तो उनको लगा कि द सिस्टम ऑफ द वेस्ट इज मच बेटर देन देयर सिस्टम. Number eight, Soviet government used much of its resources to maintain nuclear and military arsenal. After 1945, जब कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ, that time to compete with US, सोवियत यूनियन ने क्या किया, उन्होंने अपना खुद न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाना शुरू किया, मिलिट्री आर्सेनल, आर्म्स एंड एम्यूनाइजेशन स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया. और इस दौरान उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारा रिसोर्सेस उन्होंने ख़त्म कर लिया उनको मेंटेन करते हुए. एंड जो वेलफेयर स्कीम्स था और जो बेनिफिशियरी नीड्स था जो कॉमन पीपल के लिए, वो इतना मटेरियलाइज नहीं हुआ था उस टाइम में. नंबर नाइन,
Nationalist pressures led to the breakup of USSR. Three Baltic states, Latvia, Lithuania, Estonia, were taken over by Russia. जो मैंने आपको आगे ही बोला 15 रिपब्लिक्स था वहाँ पे रशिया में, और रशिया यूएसएसआर में, और रशिया कंट्रोल कर रहा था. रशिया वाज स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट था जो 15 रिपब्लिक्स में. तो वहाँ पे क्या हुआ उस टाइम में, लेटर पार्ट ऑफ द 1991 टाइप पीरियड, 3 बेल्टिक स्टेट, बेल्टिक एक एरिया था, डिफरेंट एरिया में वो भाग हुआ था यूएसएसआर. तो वहाँ पे 3 एरिया था जिसको बोलते थे लेटविया, लिथुनिया एंड एस्टोनिया. सो इन तीनों जो एरिया था, स्टेट था, इनको टेकन ओवर कर लिया किसने? रशिया ने. एंड उन्होंने खुद का अपना डिक्लेयर कर लिया इंडिपेंडेंस, ब्रेकिंग फ्रॉम द सिस्टम ऑफ. और मतलब बहुत सारे जो और भी स्टेट्स थे, उन्होंने खुद को ब्रेकअप कर दिया यूएसएसआर सिस्टम से. और धीरे धीरे यूएसएसआर टूटने लगा पूरा. जो 15 रिपब्लिक से बना था ना, 15 सिस्टम से बना था, वो पूरा टूटने लगा. अच्छा, उनके बाद और एक जो बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस ब्रेकअप में, वो था गर्बाचव्स पॉलिसी. अभी कौन था गर्बाचव? गर्बाचव वाज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, जो उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहा था दैट एरा. तो उन्होंने क्या किया, इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, जब ब्रेकअप हो रहा था ये सिस्टम, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 2 रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया. उस 2 रिफॉर्म का नाम था ग्लासनोस्ट, माने ओपननेस, मतलब थोड़ा पॉलिसी को थोड़ा ओपन करना लोगों के लिए. पेरिस्ट्रोइका, डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म इन 1985. ये जो पॉलिसी आया था, यह 1985 में आया था. मतलब उनका एक्सिस्टिंग सिस्टम उनका सेम ही रहेगा, बट विद सम मॉडिफिकेशन विद डेमोक्रेटिक सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम. उसका सोशल सिस्टम जो था वो थोड़ा मॉडिफिकेशन से आएगा वो. लेकिन ये सिस्टम एग्जैक्टली क्या था, उन्होंने ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन ही नहीं किया. लोगों को समझ में ही नहीं आया ये पॉलिसी क्या था. और जब ये पॉलिसी चला, तब एट दैट टाइम इसका कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं आया. तो people became dissatisfied with him. In 1990, another leader, Boris Yeltsin, became the elected president of Russian Federation. Russian state जो था वहाँ पे और एक नया लीडर आ गया था उस टाइम में, उनका नाम था बोरिस येल्सिन. जब लोगों ने देखा कि ये गोर्बाचेव का जो पॉलिसी है ये काम नहीं कर रहा था, ये पॉलिसी का मतलब भी क्या था उनको भी इतना अच्छे से पता नहीं था. ये पॉलिसी बहुत स्लो चल रहा था और उनको फास्ट मतलब चाहिए था इम्प्रूवमेंट वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रशियन इकोनॉमी ब्रेकअप हो रहा था, मतलब यूएसएसआर का इकोनॉमी ब्रेकअप हो रहा था, सब कुछ तहस नहस हो रहा था, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, बहुत कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गया था उस जगह पे. तो इस टाइम में फिर गोर्बाचेव को लोगों ने तब उनके ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम में और एक लीडर जो आ गए थे, बोरिस येल्सिन. Now he promised the people to remove all the odd situation in USSR. उन्होंने प्रॉमिस किया कि that he will improve the situation. And उनका मतलब जो पिक्चर इतना पावरफुल इन्फ्लुएंशियल हो गया कि लेटर ऑन गोर्बाचेव रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट. सो बोरिस येल्सिन became hero, emerged as a hero. In 1991, the Communist Party of USSR was banned. 1991 तो 1917 से लेके कम्युनिस्ट पार्टी जो इतना पावरफुल स्ट्रांग था वो बैंड हो गया, मतलब ब्रेकअप हो गया इन 1991. दे अडॉप्टेड कैपिटलिज्म. यूएसएसआर ट्रांसफॉर्म इनटू कैपिटलिज्म पॉलिसी. देखो, सोशलिज्म पॉलिसी, कम्युनिज्म पॉलिसी से दे ट्रांसफॉर्म इनटू कैपिटलिज्म पॉलिसी. लोगों को ये चाहिए था. So it transformed into capitalism policy and democratic rules and regulations were adopted. Basis of economy जो था वो इकोनॉमी पॉलिटिकल सिस्टम और डेमोक्रेटिक होने लगा, जो दूसरे कंट्री में था, वेस्टर्न कंट्री में उन लोगों ने देखा था ये, तो ये सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू किया. सो इन 1991 द सुपर पावर यूएसएसआर ब्रेक डाउन. 1991 में टोटली यूएसएसआर जो 15 रिपब्लिक से बना था वो ब्रेकअप हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो 15 जो स्टेट्स थे दे बिकेम इंडिपेंडेंट. बहुत सारे स्टेट को रशिया ने टूक ओवर कर लिया और बहुत सारे स्टेट खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. सो इट ब्रेक अप इन 1991. एक स्ट्रॉन्ग यूएसएसआर सुपर पावर कंट्री जो था, हमने देखा था कि एक बहुत सुपर पावर कंट्री ईस्टर्न एरिया में आके बैठा था, इसको बोलते थे यूएसएसआर, एंड दैट ब्रेक अप इन 1991.
और उसके जगह पे जो उसका जगह जो लिया वो था रशिया। रशिया इमर्ज एज स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट एंड इट टुक द प्लेस ऑफ यूएसएसआर। तो आज के दिन में जो यूएसएसआर को हम जिस नाम से पुकारते हैं वो है रशिया। तो रशिया इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट उस टाइम में। तो ये था सम ऑफ द कॉसेस जिसके कारण व्हाई डिड यूएसएसआर इतना पावरफुल कंट्री जो इमर्ज होकर आया, सुपर पावर कंट्री था, वो ब्रेकअप हो गया उस टाइम में। उसका खुद का ही खुद कारण था। और शायद मेरे ख्याल से सबसे जो भयानक पॉलिसी था वो था उनका कम्युनिस्ट सोशलिज्म, कम्युनिस्ट पार्टी जो अकाउंटेबल नहीं था, लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं था उनके पॉलिसी के लिए। ये मेन था जिसके कारण ये ब्रेकअप हुआ, बिकॉज पीपल वेर नॉट सेटिस्फाइड, स्टेट्स वेर नॉट सेटिस्फाइड एंड इट लेड टू द ब्रेकअप ऑफ द होल सिस्टम ऑफ यूएसएसआर। अच्छा, वहाँ पे मैंने एक जगह छोड़ दिया थोड़ा सा। जिस कॉसेस के कारण ब्रेकअप हुआ उसमें और एक कॉसेस भी था, ऐड हुआ था। वहाँ पे ऐड करना थोड़ा मुश्किल था, सो मैंने और सेपरेट से ये मनाया है। तो आप देखो थोड़ा, सोवियत अफगान वार ऑफ 1979। सो अफगानिस्तान में उस टाइम में एक स्मॉल ग्रुप था मुजाहिदीन, और जिसको हम लोग तालिबान्स भी बोलते हैं। आज के नाम के आपको सबको पता है तालिबान्स। तो ये एक स्मॉल ग्रुप था जो एक मतलब बहुत रिवोल्यूशनरी ग्रुप था। जो अफगानिस्तान का जो गवर्नमेंट था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो एक गवर्नमेंट था, उसको मतलब ये लोग इस सिस्टम को लोग मान नहीं रहे थे, इस गवर्नमेंट को लोग मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने उनका एक अपना ग्रुप खड़ा किया, और इस ग्रुप जो था वो वार मतलब एक गुरिल्ला टाइप का स्मॉल वार शुरू कर दिया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो इस गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए सोवियत यूनियन ने उनका अपना आर्मी आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन भेजा, और जो मुजाहिदीन जो थे उनको लेटर बैकअप किया बाय यूएस। उसका जो एक नेटो जो आर्मी थे उन लोगों ने जाके उनको हेल्प किया मुजाहिदीन को, और इस सिचुएशन जो था और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। लेकिन ये जो वार था ये कंटिन्यू था ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ये वार चला, 1979 से 1989 तक चला ये वार। और सोवियत अपना रेवेन्यू, फाइनेंस, सब कुछ, आर्मी, सब कुछ ढालते रहा अफगानिस्तान में, क्योंकि वो बैक साइड में कौन था एक्चुअली अफगानिस्तान के आड़े में कौन था, यूएस था। और उनका जो एक क्रैश ऑफ वार उनके बीच में जो चल रहा था जो सिस्टम, तो उसमें उन्होंने एक्चुअली वो अफगानिस्तान के मुजाहिदीन ग्रुप के अगेंस्ट में चल रहा था, बट इनडायरेक्टली यूएस के अगेंस्ट में भी चल रहा था ये वार। बट दैट वार लॉस्ट बाय सोवियत यूनियन। ये वार सोवियत यूनियन ने हार दिया, और हारने के बाद एस्टिमेट में देखा गया है ऑलमोस्ट अबाउट 8 बिलियन रूबल्स ख़त्म हो गया, उनका रेवेन्यू ख़त्म हो गया। दे लॉस्ट द वार, और वार भी ख़त्म, वार भी उन लोगों ने हार दिया। और इसमें क्या हुआ, फिर 1980s के दौरान देखा गया कि सोवियत इकोनॉमी स्टार्टेड बिकमिंग स्टेगनेंट। वो स्टेगनेंट होने लगा, मतलब एक जगह पे रुकने लगा। वो बढ़ नहीं रहा था, वो प्रोडक्टिव नहीं हो रहा था इकोनॉमी, और धीरे धीरे ये असर दिखाने लगा 1991 तक। एंड दैट्स हाउ वन सुपर पावर डिसइंटीग्रेटेड, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। तो ये था द स्टोरी ऑफ causes of disintegration of Soviet Union. Thank you, students.